السلام علیکم، پیش خدمت ہے آج کی بات سیٹھی کے ساتھ ہوں، میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کریکشن ان ایکسنٹ۔ اچھا سیٹھی صاحب، آج کیا بات کریں؟ میں سوچ رہی تھی آج ٹاس کر لیتے ہیں، کیونکہ اکثر آپ کو ایک ہی شکایت رہتی ہے مجھ سے۔ وہ کیا کہ جی لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے۔ ہاں، میں سوال شامل نہیں کرتی، وقت کی قلت کی وجہ سے ظاہر ہے میں کوئی ذاتی ایجنڈا تھوڑی رکھتی ہوں یہاں پہ۔ صحیح ہے، تو کریں پھر آپ، ایسی بہت سے سوال اکٹھے ہوئے ہیں تو لیٹس ہیو اے گو۔ آج سنڈے کا بھی دن ہے، ذرا تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جائے۔ ہاں، لوگوں کو گفٹ دے دیں جنہوں نے سوال کیے ہیں، تو سوال شامل کر لیتے ہیں، باقی باتیں جو باقی خبریں ہیں ان پر ڈسکشن ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے ہم سوال شامل کریں گے سویڈن سے حامد صاحب کا۔ میں آپ کا شو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں، جب سے نجم سیٹھی صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا تھا منیب صاحب کے ساتھ، میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ۔ سوال یہ ہے نجم سیٹھی صاحب سے کہ آخر ایسا کون سا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کر ٹاک جو ہے وہ فائٹ کے اندر چینج ہو جاتی ہے، یا کون سا ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ٹاک جو ہے وہ ود ان دا سرکل ٹاک میں ہی رہتی ہے، اور کون یہ تھریش ہولڈ ڈیفائن کرتا ہے کہ آفٹر دس وی ول گونا فائٹ اینڈ بفور دیٹ وی ول جسٹ کیپ آن ٹاکنگ۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اچھا جی، یہ جو ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ کا جو کانسیپٹ ہے یا نوشن ہے، یہ ٹاک کا تو سب کو سمجھ آتی ہے۔ فائٹ کیا، فائٹ سے کیا مراد ہے؟ فائٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ تہاڈی مطلب گالی گلوچ نہیں ہے، مکہ نہیں ہے، سڑکوں پہ یہ کر دینا وہ کر دینا، اس کا فائٹ ان فزیکل سینس نہیں ہے۔ فائٹ مینز ہارڈ لائن۔ ٹاک کے اندر نیگوسیشن میں پہلے باہر ایک گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے، میکسیمم ڈیمانڈز کریٹ کرنے پڑتے ہیں باہر، تاکہ جب آپ نیگوسیشن کرنے جائیں تو پھر وہاں کہیں منیمل ایجنڈے پہ جا کے دونوں سائڈز اگری کرتی ہیں۔ کہ اگر ایک سائڈ میکسیمم ڈیمانڈز مانگتی ہے تو دوسری سائڈ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو میکسیمم ڈیمانڈز آپ کے کنسیڈ کرے گی۔ سو ہوتا یہ ہے کہ جو فائٹ فائٹ جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میکسیمم ڈیمانڈز جو ہیں اس کے پلیٹ فارمز آپ ڈھونڈتے ہیں، اسپیشلی آؤٹ سائڈ، سڑکوں کے ہو یا کہیں بھی ہو، یا صرف بیان بازی ہو یا ریلیز کے اوپر ہو، وہ میکسیمم ڈیمانڈز ہوتے ہیں۔ سو دیٹ مینز یو آر فائٹنگ فار دا ایوری تھنگ، بیکاز فائٹ وکٹری از ایوری تھنگ۔ ٹاک جو ہوتی ہے وہاں نیگوسیشنز ہوتی ہیں۔ سو وین آئی سے ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ، واٹ آئی مین از کہ جب آپ تیاری کرتے ہیں نیگوسیشن کرنے کی ان دی کلوزڈ روم، جہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ایوری بڈی ہیز ٹو بی ریزنیبل، باہر اس سے آنے سے پہلے اور اس کے بعد جب نیگوسیشنز جاری ہوتی ہیں تو آپ بہت اگریسو اسٹیٹمنٹس کریٹ کرتے ہیں، اور وہاں صورتحال بھی ایسی کریٹ کرتے ہیں وچ از ویری اگریسو۔ تو یہ ایک نارمل اسٹریٹجی ہے۔ آپ اب امریکہ کے ساتھ نیگوسیٹ کریں یا امریکہ کسی کے ساتھ کرے، جب بات ہوتی ہے تو ایک بات ہوتی ہے، جب باہر آپ ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں کرتے ہیں، چکے چوکے مارتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کی بھی ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ جو ہے، ایک طرف آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کی ایک پوری لائن ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے، لوگوں کو الگ اس کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور لڑنے کے لیے میکسو اسٹیٹمنٹس دیکھنے کے لیے، اگریسو باتیں کرنے کے لیے وہ انہوں نے ایک الگ کمیونٹی بنائی ہوئی ہے۔ سو آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی مین بائی سیئنگ ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ۔ آپ ہتھیار، نیگوسیشن کے جو ہتھیار ہوتے ہیں، بیکاز ایونچولی ہر کانفلکٹ جو ہے وہ نیگوسیشن سے ہی ریزالو ہوتی ہے، فزیکل وائلنس سے نہیں ہوتی، اسپیشلی ان اے ڈیموکریٹک سسٹم۔ تو سو دیٹ از واٹ آئی مین بائی ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ۔ اس کے ایک اور بھی دیر از اندر وے آف پٹنگ اٹ، واک دا ٹاک، مطلب ہے کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں وہی آپ نیگوسیشن پہ بھی لے کے آتے ہیں، اینڈ سو آن۔ So that is what I meant when I say talk talk fight fight, whether you are allies or whether you are opponents. Even allies جب آپس میں بات کرتے ہیں تو ایک طرف انہوں نے ہارڈ لائنرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ گرجتے ہیں اور تھریٹن کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہوتے ہیں جو کہ سافٹلی they proceed on principles of negotiation. And negotiation کیا ہے؟ Negotiation is the art of compromise. And اس کے اوپر تو آپ خود ہی دیکھتے ہوں گے، کسی بک شاپ میں چلے جائیں، thousands of books on the art of negotiation. How you start, how you finish, how you see the body language, what hard line to take, when to take a soft line, when to advance, when to retreat, and so on and so forth. So that's what I mean when I say talk talk fight fight. It is not unusual, it is the norm. یہ نارمل بات ہے talk talk fight fight۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ سیٹھی صاحب کے انالیسس کر رہا ہے بورے والا سے پروفیسر عثمان اسحاق۔
आपने जो 2025 का आखिरी प्रोग्राम किया था, जिसमें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर बात करते हुए आपने कहा था कि 2026 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 3-4 रोज़ा जंग होगी जो इंडिया शुरू करेगा और उसके बाद वो प्रोपेगेंडा करेगा कि मैं जीत गया, ताकि वो अपने अवाम के सामने 2025 की शिकस्त का मुदावा कर सके। सर, हम तो ये सुनते आए हैं कि न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग नहीं होती, हमने देखी भी नहीं कोई ऐसी जंग होते हुए। और जब 2025 में इंडिया ने कोशिश की तो किस तरह अमेरिका ने, ट्रंप ने और दूसरी ताकतों ने उसे ज़बरदस्ती रोका कि वो इस जंग को न बढ़ाए, जब पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया। कॉमन सेंस तो इस बात को नहीं मानती कि इंडिया दोबारा कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि आपकी अक्सर पेशीन गोइयाँ सही साबित होती हैं, तो आपके पास वो कौन सी ठोस बातें हैं जिनकी बुनियाद पर आप ये कंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, जाहिर है दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, पहली बात। दूसरी बात ये, आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, तो इसका मिलिट्री डायमेंशन की तरफ मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। मैं एक सियासी तौर पे देख रहा हूँ और तारीख़ी तौर पे, क्योंकि तारीख़ में क्या हुआ जब इस किस्म की सिचुएशंस अराइज़ की हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक पॉपुलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने वोट लिए। वो उनकी आइडियोलॉजी है, जैसे अंग्रेजी फ्रेंच का लफ्ज़ है रेज़न d'être, द रीज़न टू बी। That is his reason to be, his aggressive posture, especially vis-a-vis Pakistan and Muslims. That is the core essence of his agenda, जिसकी बेसिस के ऊपर वो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं इनटू अ हिंदुत्व स्टेट, नॉन सेक्युलर हिंदुत्व स्टेट, एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज़, इवन एंटी क्रिश्चियंस। तो ये उनका एक वोट कैचर है। अच्छा, इस सिचुएशन में उन्होंने जो जंग की पाकिस्तान के ऊपर, द एम वॉज टू शो अप ब्रिलियंट विक्ट्री। ये पहली दफ़ा नहीं, आपको पता है उन्होंने पहले भी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स वाला कॉन्सेप्ट बनाया था और अपनी आवाम को बताया था, हम अंदर गए, हमने जाके उनके वहाँ हमने उनके जो जिहादी कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये किया वो किया, विच इज़ ऑल नॉनसेंस। इंडियन अवाम क्योंकि मीडिया उनको सपोर्ट करता है, हर बात उनकी मानता है इंडियन मीडिया, तो उन्होंने वो प्रोपगेट कर दिया कि ये नहीं बताया कि जहाज़ गए और एम्प्टी जगह पे जाके और बम फेंका है और उसके बाद भागा है जल्दी से वापस, और ये भी नहीं बताया कि उसके बाद पाकिस्तान ने हमला जो किया तो वो उसमें क्या नुकसान हुआ इंडिया का, क्या नहीं हुआ। बिल्कुल उसको गोल कर गए और अपनी आवाम को यही बताया कि जी हमने तो बड़ा कामयाब स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की। और मेरा ख्याल है 80-90% उनकी आवाम यकीन करना भी चाहती थी और यकीन कर भी लिया। कोई वहाँ इंडिया में ये यकीन नहीं करना चाहेगा कि कहीं पाकिस्तान में हैव हैड द अपर हैंड, या जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। सो आई थिंक ये दो फैक्टर्स थे, अवाम ने मान ली बात और नरेंद्र मोदी साहब बड़े खुश हो गए कि लो जी, एक छोटी सी चीज़ मैंने की है, इसके साथ मुझे और भी मेरी शोहरत बनी। ना ये जो इशू था जो संदूर वाला, ये भी उसी किस्म की चीज़ थी। इनका ख्याल था कि दे विल बी एबल टू गेट अवे विद इट लाइक दे डिड, दे थॉट इन द स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स। मगर यहाँ बहुत नुकसान हो गया। शुरू में तो उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया कि उनका कोई जहाज़ गिरा है। वो शुरू में तो वो यही कोशिश की करने की कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आए थे और हमने फिर अटैक किया और हमने उनके एयर बेसिस को उड़ा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। और जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने तो उनके इतने 4 जहाज़ गिराए हैं, तो कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। नॉट अ सिंगल इंडियन मीडिया पर्सन वॉज रेडी टू एक्नॉलेज, ना ही उनकी गवर्नमेंट। और वो दुनिया को यही बताते रहे कि वो कामयाब रहे। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने तफ्तीश की तो पता ये चला कि पाकिस्तान का जो बयानिया है दैट इज़ करेक्ट और इंडिया के बयानिया इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ तक कि शायद पाकिस्तान कहना चाह रहा था कि हमने 4 से भी ज़्यादा गिराए हैं, मगर इन्होंने सोचा कि नहीं, ये ज़्यादा प्रोवोकेशन हो जाएगी और बाकी जो गिराए हैं उनका एविडेंस भी हमें नहीं मिला। हम जब मिल जाएगा तो देखेंगे। 4 की एविडेंस है दैट वी कैन प्रूव, तो हम उसी की बात करते हैं। मगर इंडिया तो वो भी तस्लीम करने के लिए तैयार है। इंडियन मीडिया तैयार ही नहीं था करने। जब मैंने अपना एक प्रोग्राम किया और कहा कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये पहली दफ़ा नहीं, जैसे सिंहपुरा में भी उन्होंने इसी किस्म की हरकत की थी कि ये वाइस प्रेसिडेंट
वहाँ उस वक्त बिल क्लिंटन आया हुआ था जी, जी। और इन्होंने खुद ही एक ऑपरेशन करके कोई मार दिए अपने बंदे और कहा कि ये पाकिस्तान से लोग आए हैं और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें। ये सब भी चीज़ें ये करते हैं। पाकिस्तान पागल तो नहीं है कि जब क्लिंटन वहाँ आया हुआ और अपने बंदों को कहे जाके ये कर दो मगर इन्होंने यही कोशिश की बताने की कि जी पाकिस्तान इज बिहाइंड इट। बाद में ये पता चला और इनके अपने एक मेजर जनरल साहब है जिनकी इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि ये तो हमने खुद ही किया था। उसके बाद हमने 3-4 लोग भी मार दिए थे और कहा था कि ये वही लोग हैं जो जिन्होंने ये सारा मैसेकर किया था सिखों का एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सब झूठ, एंड दैट वाज द प्रीटेक्स्ट टू डू अदर थिंग्स। तो अब ये भी मैंने तो यही कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दिस इज़ अगेंस्ट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और उसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। बहुत से अब इंडियन मीडिया के लोग, स्पेशली इंडिपेंडेंट इंडियन मीडिया के लोग उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि इसका सवाल का जवाब नहीं मिला, इसका नहीं मिला, इसका नहीं मिला। बहुत से सवाल है, मैं अब कहाँ जाऊँ उधर, बहुत से सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला, जिससे ये पता चलता है कि गड़बड़ है, दाल में काला है, दिस इज प्रॉबेबली अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और फिर इतनी जल्दी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद एक ऑपरेशन माउंट करना और ऑपरेशन सिंदूर, और इनका ये ख्याल था कि बिकॉज दे हैव एन ओवरवेलमिंग एयरफोर्स एंड द बेस्ट फ्रेंच एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, दे थिंक दे विल बी एबल टू डोमिनेट पाकिस्तान। इनको बिल्कुल एहसास ही नहीं था कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो मिल के जो कॉमन प्लेटफॉर्म जो बनाया है टू टेक इन टू अकाउंट प्रिसाइसली दिस। देखिए पाकिस्तान सोया हुआ तो नहीं था ना, जब ये राफेल ले रहे थे तो पाकिस्तान को पता था ना ये राफेल की क्या कैपेबिलिटी है और क्या पाकिस्तान के पास इज़ देयर एनी वे टू डिफेंड अगेंस्ट द राफेल अटैक। 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर से दूर से वो फायर करते हैं, आपके पर रेडार वहाँ तक पहुँचता नहीं है, तो आप उनको कैसे करेंगे। ये तो नहीं था कि जैसे पुराने ज़माने में बॉर्डर के ऊपर डॉग फाइट्स होती थी, हमें भी पता था कि ये नहीं होगा। वी न्यू दे हैड मीटियोर मिसाइल्स जो कि बड़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनकी, एंड दे हैव लॉन्ग रेंज फायरिंग। So we knew that. So we therefore, in preparation of the Indian upgrading of its air force, हमने भी कुछ तैयारियां की हुई थी कि हम अपने limited resources को join करके the sum of the parts is more than the parts itself, हमने वो प्लेटफॉर्म एक बनाया हुआ था of missiles, long range missiles, aircraft and early warning systems. स्वीडन से खरीदे हुए थे, कुछ चाइना से लिए हुए थे, which were guiding our missiles and our aircraft. So the India didn't realize कि ये इन्होंने इस किस्म का सिस्टम बनाया हुआ, so they were caught off guard और बड़े नुकसान हुए इनके। कुछ वक्त लगा है वहाँ ये बात को एहसास होने में अवाम को और इंडियन मीडिया को कि यार गड़बड़ हो गई, हमें हमारे साथ जो कहानी बताई गई थी, जो बयानिया था वो तो गलत था। वी डिड नॉट अचीव एनी सक्सेस, ये तो ऑलमोस्ट हमारी डिफीट ही लगती है। हमें तो पाकिस्तान कह रहा था 4, हम तो 1 मारने के लिए तैयार नहीं थे, और डोनाल्ड ट्रंप कहता 7 ने वो पता नहीं कितनी दफ़ा 50 दफ़ा तो वो कह चुका है। तो इसका ये मतलब है गड़बड़ तो हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगी हुई है कि वो इतनी खुली खुली बातें कर रहा है हमारी डिफीट के बारे में, और एकदम दुनिया ने पाकिस्तान का बयानिया मान लिया और इंडिया का बयानिया बोथ कि उनकी डिफीट नहीं हुई और ये कि पाकिस्तान ने ये टेररिस्ट भेजे थे। दुनिया ये मानने के लिए तैयार नहीं है, दोनों चीज़ें। तो इंडिया की तो बहुत नुकसान हो गया है, और नुकसान से मुराद है नरेंद्र मोदी की नुकसान हो गया है। अब बहुत से उनके डाई हार्ड लोग हैं जो कि सभी अभी भी समझते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी का इतना नुकसान नहीं हुआ एंड सो ऑन। मगर बात यह है कि नरेंद्र मोदी को एहसास है इस बात का कि अब कहीं ना कहीं तो बदला लेना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड फॉर डोमेस्टिक supporters कि we are capable of winning and we are going to win. And my sense is कि क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया हुआ है, हाँ। ख़त्म नहीं, पॉज किया हुआ है, तो मतलब ये है कि इसको फिर चलाएंगे हम। इसका ये मतलब है कि हम सही टाइम पे सोच समझ के तैयारी करके हम आएंगे, फिर हम बदला लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, तो या तो वो कहते ना ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो जाती, पर नहीं। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आई थिंक कि किसी न किसी स्टेज पे वो सोच समझ के पूरी तैयारी करके और वो फिर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे जिसके बेसिस के ऊपर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे। पिछली दफ़ा तो एक हुआ था फॉल्स फ्लैग, उसके दरमियान और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कुछ गैप भी था, ठीक है। इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि गैप वैप कोई नहीं होगा, एक ऑपरेशन होगा, कोई कहेंगे लो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और उसके बाद इमीडिएटली दे विल अटैक आवर एयरफील्ड्स एंड ट्राई कि हमारा जो सिस्टम है जो प्लेटफॉर्म का, जिसके बारे में कुछ इंडियन कमेंटेटर्स भी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म, तो वो उसको नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। एंड यू नो दे हैव द मिसाइल्स,
both surface to surface missiles and air to surface missiles. तो और उनकी long range है. So in a surprise attack they might do that. So therefore my sense is that we need to be prepared for that. One of the reasons कि मैं ये कहता हूँ कि वो करेंगे इस वो करें या ना करें, आज करें या कल ना करें या परसों ना करें, हमें हर वक्त यही अजम्पशन रखनी चाहिए, यही हमारा बयानिया होना चाहिए कि वो करेंगे. तो अगर हम ये करेंगे, अगर हम ये समझते हैं कि वो करेंगे तो हम तैयारी करके बैठे होंगे. ये ना हो कि हम सोचे कि नहीं करेंगे और जी ये वजह वो नहीं करेंगे तो फिर, तो इसलिए इट इज़ गुड फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू कि आप समझे कि वो करेंगे और आप कहें वो करेंगे, दुनिया को भी आगाह करें कि वो करेंगे और बताएं क्यों करेंगे, ताकि दुनिया की सिंपथीज आपके साथ हो, उनके साथ ना हो, और उसकी तैयारी फुल फ्लैश करें कि जैसे वो ऐसे एक चीज़ अगर करते हैं तो फिर आपको वहाँ उस वक्त फैसला करने की ज़रूरत ना पड़े, तैयारियाँ करने की ज़रूरत ना पड़े, सोचों में पड़ने की ज़रूरत ना पड़े अब हम क्या करें क्या ना करें. इट शुड बी एज स्विफ्ट द रिस्पॉन्स एज द ओरिजिनल अटैक. नहीं करते तो फाइन, बी कंटिन्यू टू बी ऑन गार्ड, मगर अगर आप तैयारी करके बैठेंगे तो यू विल सक्सीड. दैट इज़ वाई आई से कि वो पॉज जो है वो किसी न किसी स्टेज पे क्लिक होगा एंड दे विल कम बैक विद द इंटेंशन कि आपको किसी न किसी तरीके से शो करें दुनिया को यू हैव बीन डिफीटेड इन अ स्मॉल एक्सरसाइज. लंबी एक्सरसाइज करने के वो इंटरेस्ट में नहीं है, बिकॉज दे नो अ लॉन्ग एक्सरसाइज कैन एस्केलेट, एंड एस्केलेशन में बड़ी जल्दी आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाते हैं. सो यही है कि वो करेंगे इन द होप कि 2-3 दिन के अंदर अंदर वो जल्दी से जो उन्होंने अचीव करना है अपने लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि वी आर अ माइटी फोर्स, 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द वर्ल्ड, ग्रेट मिलिट्री, ग्रेट यूज ऑफ मिलिट्री पावर्स एट्सेट्रा, दे वांट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट. बिकॉज देखिए हुआ है कि इंडिया का स्टेचर जो है ना, स्टेटस गिर गया है, पाकिस्तान का बढ़ गया है, सारी दुनिया लाइन अप कर रही है, सानू भी जहाज दो, हमें भी सिखाएं आपने कैसे किए. इंडिया को कोई घास नहीं डाल रहा और उनको बड़ी तकलीफ हो रही है. बल्कि डील्स कैंसिल हो रही है. एज अ थ्योरेटिशियन एंड एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट कि सूनर और लेटर ये करेंगे, उसकी तैयारी करके हमें इंतजार करनी चाहिए, एंड इफ एंड व्हेन दैट हैपेंस वी शुड गिव एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. ठीक है, ये तो डायरेक्ट अटैक की बात हुई है, प्रेडिक्शन सिटी साहब ने किस बुनियाद पर की आपको तफसीलन जवाब मिल गया, लेकिन इनडायरेक्टली भी भारत हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है डिफरेंट ग्रुप्स के ज़रिए, जिसका तस्करा DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इन डिटेल्स और सारी उसकी तफसीलात के साथ करते हैं. इसी बाबत एक सवाल कोयटा से जमान साहब ने पूछा है. साहब, क्या दुनिया में प्रॉक्सीज वार जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं या अभी भी प्रॉक्सीज वार का सिलसिला जो है वो जारी है? आपके इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी नज़र है, ऐसे महसूस होता है जैसे अब जंगें बराह रास्त होंगी और प्रॉक्सीज वार जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं. आप ज़रा फरमाइए, क्या अभी भी प्रॉक्सीज वार जारी है, उनकी कोई अहमियत बाकी रहती है? देखिए, न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान तो प्रॉक्सी वार्स इज़ द प्रेफर्ड ऑप्शन, बिकॉज अगर गड़बड़ हो जाए तो वो न्यूक्लियर पावर्स कैन एस्केलेट इनटू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट. तो इसलिए प्रॉक्सी वॉर्स ख़त्म नहीं हुई हैं. यस, इसमें कोई शक नहीं है कि जब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में कोल्ड वॉर शुरू हुई बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड अमेरिका, लेड बाय द वेस्ट लेड बाय अमेरिका एंड द ईस्ट in a sense led by the Soviet Union, तो proxy wars होते थे because both were declared nuclear powers, Soviet Union and America, तो ज़्यादातर proxy wars होते थे, whether in Africa जो कि American forces, American supported regimes और Soviet supported regimes के खिलाफ independence movements और secessionist movements और opposition को करना, this was the norm. मगर जब से ये unipolar world बना 1993 के बाद, आफ्टर द डिवाइस ऑफ सोवियत यूनियन, तो अमेरिका ने प्रॉक्सी वॉर्स की फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड जहाँ भी फिर उसके बाद जो इंटरवेंशंस हुई हैं, स्पेशली अमेरिकन, वो डायरेक्ट ही हुई हैं. एक आध जगह पे यस डिस्टेबलाइज करने के लिए, सॉफन अप करने के लिए एट्सेट्रा, बट बाय एंड लार्ज अमेरिका की जो प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटजी थी वो थोड़ी सी रिट्रीट पे गई या इनडायरेक्ट हो गई. मगर पाकिस्तान इंडिया में तो कब से प्रॉक्सी वॉर चल रही है. आपको पता है कि जब कश्मीर के अंदर लिबरेशन की वॉर शुरू हुई तो उससे ज़ाहिर है पाकिस्तान का सपोर्ट था, एंड इंडिया यूज्ड टू एक्यूज अस कि आपने अपनी प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. और वो दिन था और आज का दिन है. टुडे वी आर नॉट डूइंग दैट एनी मोर, और अब इंडिया जो है वो कर रहा है. इंडिया इज़ एडिंग दी BLA, उसके ज़रिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है. इंडिया इज़ एडिंग द तालिबान, तहरीक तालिबान, उनके ज़रिए कर रहा है. मैं तो समझता हूँ शायद IS के
उसके साथ भी कर रहा है, टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ. इट इज़ इन इट्स इंटरेस्ट कि सबको पैसे दें, हथियार दें, बिकॉज वो इंडिया तक तो नहीं पहुँचेंगे ना. देयर इमीडिएट एनिमी इज़ पाकिस्तान. एंड सो देयरफॉर आई थिंक इंडिया इज़ प्रमोटिंग प्रॉक्सी वॉर्स इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल. एंड उसका जो आपको रिजल्ट है वो आपको नज़र आ रहा है. हम नहीं कर रहे ये. अच्छा, बिकॉज वी अबैंडन दिस पॉलिसी कि जी हम कश्मीर के अंदर कुछ करें इस तरीके से. तो अब सिचुएशन ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर यस देयर हैज़ बीन अगेंस्ट द सोवियत यूनियन. जब 1980s में पाकिस्तान वाज द प्रॉक्सी. पाकिस्तान ने जो मुजाहिदीन खड़े किए थे, दैट वाज अ प्रॉक्सी वॉर. पाकिस्तान वाज अ प्रॉक्सी फॉर अमेरिका एंड द मुजाहिदीन वर अ प्रॉक्सी फॉर अमेरिका एंड पाकिस्तान. दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग अगेंस्ट द सोवियत यूनियन. वो भी अब ख़त्म हो गया है. सो अब आई थिंक देयर आर चुने केसेस हैं वे प्रॉक्सी वॉर्स आर टेकिंग प्लेस, स्पेशली इन आवर रीजन. इंडिया डेफिनेटली कर रहा है ये. बट आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग अब तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि जी अमेरिका की क्या इस वक्त पोजीशन है और सोवियत यूनियन की क्या है और चाइना की है. चाइना ने तो कभी भी किसी जगह पे भी मिलिट्री इंटरवेंशंस की बात नहीं की. वो तो इकोनॉमिक ट्रेड के साथ काम करना चाह रहे हैं. उनकी तो पॉलिसी बिल्कुल फ़र्क है. तो सोवियत यूनियन एक ज़माने में करता था, रशिया नहीं करता. रशिया हैज़ बीन कंसर्न्ड अबाउट प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, इसीलिए यूक्रेन में उन्होंने एक्शन लिया. अदरवाइज़ तो वो सारा नेटो एक्सपैंड कर ही जा रहा था. उन्होंने कुछ नहीं कहा. जब वो उनके बॉर्डर पे पहुंच गए फिर उन्होंने शोर डाला. अदरवाइज दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस. अमेरिका येस सर्टनली. अब फॉर एग्जांपल ईरान में जो होने जा रहा है और जो हो रहा है, ईरान में वो बिल्कुल प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करेंगे अमेरिकन्स, वेदर दे आर द कुर्द्स, whether they are the Iranian people or whether it is the Iranian Baloch, and so on. So this is, I think, the way things are going to proceed.